Hello friends, welcome again. Today we are get the information from geography lesson, physiography and drainage. In my previous videos, in one video we take the information about physiographic division of India and another video we get the information physiographic division of Brazil. In this video, we are getting the information about drainage of India and Brazil. That means a comparative study of India and Brazil about drainage system. Okay, in India, Himalayan drainage and peninsular rivers, and in Brazil, Amazon rivers, Paraguay Paraná rivers, São Francisco rivers, coastal rivers. Okay, first drainage in India, Himalayan drainage. Most of the major rivers of Himalaya originated from glaciers. They are perennial. The information of these rivers is as follows. That means a classification of river: Sindhu river system and second Ganga river system. Okay. The features of Sindhu rivers and its tributaries: main river Sindhu, tributaries Jhelum, Chenab, Ravi, Bias, etc. All these rivers flow from the state of Jammu and Kashmir. Satluj originated near Mansarovar. The deposition of a centimeter broad Satluj and its tributaries has formed the Punjab-Haryana plain. The features of Ganga river and its tributaries: main river Ganga, originated from Gangotri glaciers. Yamuna is a major tributary of Ganga and originated at Yamunotri. Dihang, Brahmaputra are tributaries of Ganga flowing in the northeast region of India. Chambal, Ken, Betwa, Shon, Damodar, etc. are the peninsular tributaries or rivers of Ganga. Okay, that means one part, that is Himalayan drainage, in which we are making two classification of a Ganga river system and Yamuna Sindhu river system. Sindhu and Ganga, two major rivers in India. Okay, now peninsular rivers. The information of these peninsular rivers, that means westward flowing and eastward flowing. Now, features of westward flowing rivers in India. Many westward flowing rivers flowing from Kerala, Karnataka, Maharashtra and southern Gujarat have similar features. Tapi, Narmada, Mahi, Sabarmati flow into the Gulf of Khambar. Mahi rivers flow from northeast to southwest. Sabarmati river originated from southern slope of Aravallis. Luni rivers originated from the western slope of Aravalli and flows into the Gulf of Kutch. Features of eastward flowing rivers in India: Ganga, Godavari, Krishna, Kaveri are major eastward flowing rivers. Godavari, Krishna, Kaveri originated in eastern slope of western Ghats. Godavari is the second largest river system in India in terms of catchment area. Krishna river basin is located to south of Godavari. Bhima, Tungabhadra are major tributaries of Krishna. River Kaveri flows through the state of Karnataka, Tamil Nadu, and it is used to irrigation since a long time. That is drainage system in India. Okay, we clear this system in India. जैसे कि हम जानते हैं, हिंदुस्तान की जो जल प्रणाली है, ड्रेनेज सिस्टम, दैट मीन्स जल प्रणाली, उगम क्षेत्र के अनुसार भारत की जो नदियां हैं उनका दो वर्गों में उनका वर्गीकरण होता है। एक हिमालय में हिमालयी नदियां और दूसरी द्वीपकल्पीय नदियां, ऐसा उनका वर्गीकरण होता है। जो हिमालयन नदियां हैं उनमें से प्रमुख नदियां हैं जो हिम नदियों से उगम होता है और धूप में भी
उनमें से बड़ी मात्रा में पानी का विसर्ग होता है। बरसात में तो उनको बाढ़ आती है। ये जो नदियाँ हैं इनको 12 महीने उनको बहने वाली नदियाँ बोलते हैं। इस गट में सिंधु नदी और उसकी उपनदी और गंगा नदी और उसकी उपनदी, ऐसे दो समूह में उनका वर्गीकरण होता है। सिंधु नदी और उसकी उपनदियों में झेलम, चिनाब, रावी, बियास, ये जो पश्चिम हिमालय मतलब कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से बहते हैं और बहुत से जो राज्यों है मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर बहते हुए ये जो नदियाँ बहती हैं एक दूसरे को समांतर बहती हैं। सिंधु की और एक उपनदी है, उसका नाम है सतलज। ये मानसरोवर में उगम होता है उस नदी का और वो पश्चिम दिशा से बहती है। सतलज और उसकी जो उपनदियाँ हैं उनके गाह से, उनका यह संचयन से भारत में पंजाब का मैदान तैयार हुआ है। सिंधु आगे जाके पाकिस्तान में बहती है और अरब समुंदर में मिलती है। गंगा नदी ये दूसरा पार्ट है। गंगा नदी हिमालय से गंगोत्री की हिमनगों से उगम होता है। उसका हिमालय छोड़ के आगे वो मैदान की प्रदेश में आती है, वो पूर्व वाहिनी बनती है, मतलब पूरब की तरफ बहती हुई बनती है। हिमालय में उगम होने वाली और गंगा की और एक उपनदी ऐसे ही मार्ग से बहती है, यमुनोत्री। उसका उगम यमुना नदी एक गंगा नदी की बड़ी उपनदी है, प्रमुख उपनदी है। गंगा का जो गंगा का एक बहुत बड़ी और उपनदी है, वो हिमालय की उत्तर दिशा से बहते हुए हिमालय से आगे आके भारत की हद में मतलब भारत की एरिया में प्रवेश करती है और उसको हिमालय से बहती है वो तीसांगपो नाम से पहचानी जाती है और उसको आगे उसका दिहांग नाम दिया गया है। पूर्व दिशा की तरफ से बहने वाली ब्रह्मपुत्रा भी उसको संबोधित करते हैं। गंगा नदी की और बहुत सी उपनदियां हैं, वो ठराविक डिस्टेंस से उनका जो विसर्ग बढ़ता जाता है। ब्रह्मपुत्रा आगे बांग्लादेश में जाती है, उधर पानी और अवदास इनका बड़ा विसर्ग होने की वजह से वहाँ पे एक त्रिभुज प्रदेश निर्माण हुआ है। द्वीपकल्पीय नदियों में कुछ नदियाँ गंगा नदी में आके मिलती हैं, उनमें चंबल, केन, बेटवा और सोन ये मुख्य नदियाँ हैं। ये हो गया गंगा और सिंधु का वर्गीकरण, मतलब हिमालयन नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ सिंधु और गंगा। और दूसरा जो है पेनिसुलर रिवर, दैट इज द्वीपकल्पीय नदियाँ। द्वीपकल्पीय नदियों का वर्गीकरण पश्चिम वाहिनी और पूर्व वाहिनी ऐसे कर सकते हैं। द्वीपकल्प की पश्चिम भाग से पश्चिम घाट का महत्व जल विभाजक है। द्वीपकल्पीय नदियों का विसर्ग बारिश के ऊपर अवलंबित है। इसकी वजह से इन नदियों के नदियों को बाढ़ का धोखा ज़्यादा नहीं होता। ये नदियाँ हंगामी स्वरूप मतलब बरसात के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से उनका उगम मतलब उन नदियों को बाढ़ का धोखा कम हो जाता है। दूसरा पश्चिम घाट और अरब समुंदर इनके बीच में बहने वाली नदियाँ, इन नदियों की लंबाई कम होती है और उनका वेग जो बहने का स्पीड है वो ज़्यादा रहता है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात का जो किनारी प्रदेश है, इन नदियों का जो गुणधर्म है साधारण समान है। उत्तर गुजरात में खंबात की अखात से किनारों में आके मिलने वाली नदियाँ, उनका और एक गट आता है, उनमें तापी, नर्मदा, मही, साबरमती इन नदियों का समावेश होता है। तापी और नर्मदा या ये जो नदियां हैं खचदरी से बहते हैं ऐसे माने जाते हैं। महानदी ईशान्य नैऋत्य दिशा से बहती है तो वो
अरवली के दक्षिण उतार से उगम पाने वाली साबरमती नदियाँ उत्तर दक्षिण दिशा से बहती हैं। इसके सिवाय अरबी समुद्र में मिलने वाली अरवली के पश्चिम उतार पे उगम होने वाली लूनी नदी है। ये जो लूनी नदी है आगे जाके अरब समुद्र में कच्छ के आखात में मिलती है। दूसरी, बंगाल के उपसागर को मिलने वाली नदियाँ द्वीपकल्प मतलब ईस्टर्नवर्ड्स नदियाँ, मतलब जो पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी, अभी आगे पूरब की दिशा से बहने वाली नदी, मतलब बंगाल के उपसागर की तरफ से। द्वीपकल्पीय पेटों का जो बंगाल का उपसागर पांडु एक बड़ा क्षेत्र है। इसमें गंगा नदी के सिवाय महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये प्रमुख नदियों का समावेश होता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों नदियों का उगम पश्चिम घाट के पूर्व उतार पर होता है। पश्चिम घाट के पूर्व उतार पर गोदावरी और उसका पांडलोक क्षेत्र के दृष्टि से देखा जाए वो भारत की दूसरी नदी है। कृष्णा और कृष्णा का जो ये है कृष्णा खुरी गोदावरी के दक्षिण दिशा में है। भीमा और तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी की प्रमुख उपनदियां हैं। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु से बहके आगे जाती है बंगाल के उपसागर में। इस नदी पर बहुत सालों से जल सिंचन का उपयोग किया जाता है। ये हो गया भारत की ड्रेनेज सिस्टम यानी ड्रेनेज इन इंडिया। नाउ ड्रेनेज इन ब्राज़ील, उसमें से 4 मेजर पार्ट्स आते हैं: अमेजॉन रिवर, पैराग्वे पैराना रिवर, साउथ फ्रांसिस्को रिवर एंड कोस्टल रिवर। Features of Amazon basin. Amazon river originated from the eastern slope of Andes mountains in Peru. Amazon river basin form the largest plains in Brazil. It is located in the northern part of Brazil. Amazon river has a huge discharge leading to formation of islands near its mouth. The width of the mouth of Amazon river is nearly 150 kilometers. Most of the course and mouth of Amazon river is used for navigation. Second point, features of Paraguay Parana system. Located in southwest region of Brazil, Paraguay and Parana flow in the southwest direction in Brazil and meet river Plata in Argentina. Receives their headwaters from the southern slopes of Brazilian highlands. Features of a São Francisco. Third point, São Francisco entire basin is within Brazil. It originates from eastern slope of Brazilian highlands. From its origin for a distance about 1000 kilometers, it flows towards the north over the Brazilian plateau and then takes a sharp eastward turn and enters in the coastal strip along the South Atlantic Ocean. The drawn string of São Francisco is used for navigation for nearly distance about 250 kilometers. Coastal rivers of Brazil. These rivers are short length, significant due to the densely populated coastal area. River Pranamba and river Plecluru flows to the north and meet North Atlantic Ocean. Rivers Jacquinthona and river Pusgravech and some other rivers meet South Atlantic Oceans. River Paraguayo flows to the east and enters Atlantic Ocean near Salvador town. ओके, मतलब जो ब्राज़ील का ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जल प्रणाली, ब्राज़ील की जल प्रणाली है, उनके बारे में जैसे हम सोचेंगे, जैसे कि हमको ध्यान में आता है ये 3 प्रमुख नदियों का ब्राज़ील का जल प्रणाली है। अमेज़न नैऋत्य दिशा की तरफ से पैराग्वे पैराना की जल प्रणाली और ब्राज़ील की उच्च भूमि में साउथ फ्रांसिस्को और किनार पट्टी की नदियाँ। पहले अमेज़न की जल प्रणाली के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद में
पैराग्वे पैराना की जल प्रणाली और सैन फ्रांसिस्को की जल प्रणाली और किनारी प्रदेशों की नदियाँ। अमेज़न की जल प्रणाली, अमेज़न नदी का उगम पेरू देश में एंडीज पर्वत की श्रृंखला में पूर्व उतार की तरफ होता है, पूर्व उतार पे होता है। अमेज़न नदी का उगम पेरू देश में एंडीज पर्वत श्रृंखला पे पूर्व स्लोप पे है। अमेज़न में पानी का जो विसर्ग है वो बहुत बड़ी मात्रा में है। ये तकरीबन 2 लाख घन मीटर प्रति सेकेंड, इतना बहुत बड़ा है। उसकी वजह से नदी की उगम से नदी का जो पात्र है इसमें बहुत मात्रा में जो मिट्टी बह के आती है। इसकी वजह से नदी की जो मुख है उसकी तरफ जो मिट्टी का संचयन होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होता है। साधारणतः नदियों के मुख पे और बहुत अनेक वितरिका होने की वजह से इन वितरिकों को अमेज़न को मुखाशी मतलब अमेज़न का जो मुख है उसकी नज़दीक भी नहीं होती। मतलब ये जो नदी का बहाव है, अमेज़न नदी का बहाव बड़ी मात्रा की में होने की वजह से जो मिट्टी बह के आती है वो मुख, जो नदियों का मुख और जो गाल, जो जिसको हम मिट्टी का गाल बोलते हैं, वो बड़ी मात्रा में नहीं होता। इसकी वजह से नदियों के मुख पे अनेक वितरिका भी नहीं मिलती। मात्र इस प्रकार की वितरिका अमेज़न के मुख के पास नहीं मिलती। उसकी बदले में अमेज़न के मुख के पास अटलांटिक समुद्र के किनारे बहुत बेटे मतलब जो आइलैंड्स तैयार हुए अपने को दिखाई देते हैं। अमेज़न नदी का पात्र मुख के पास उसकी जो रुंदी है वो 150 किलोमीटर है। मतलब आपको एक आपके गांव से आप 150 किलोमीटर का अंदाज़ा लगाइए, मतलब उसका जो ब्रेड्थ है 150 किलोमीटर का है। अमेज़न नदी का बहुत मैक्सिमम जो पात्र है पानी का, वो पानी प्रवास मतलब जल प्रवास के लिए योग्य है। दूसरा जो पार्ट है पैराग्वे पैराना जल प्रणाली। पैराग्वे पैराना जल प्रणाली या दो नदियों ब्राज़ील की नैऋत्य दिशा को नैऋत्य एरिया में हमको दिखाई देती है। ये जो दो नदियां हैं ब्राज़ील की दक्षिण में अर्जेंटीना देश में, अर्जेंटीना प्लाटा नदी को आगे जाके मिलती है। ये जो दो नदियां दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण के टोक की तरफ उरुग्वे नदी जो है वो ब्राज़ील की उच्च भूमि की दक्षिण उतार से पानी पुरोठा उसको होता, पानी का मिलाप उसमें होता है। तीसरा जो पार्ट है साओ फ्रांसिस्को, ये ब्राज़ील की तीसरी बड़ी नदी है। पहली है अमेज़न, सेकंड है पैराग्वे पैराना, थर्ड है साओ फ्रांसिस्को। ये ब्राज़ील की तीसरी महत्व की नदी है, इम्पोर्टेंट नदी है। इस नदी का संपूर्ण पाणलोक क्षेत्र है ब्राज़ील की एरिया में आता है। ब्राज़ील की पूर्व भाग में ये पाणलोक क्षेत्र है। तकरीबन इस एरिया में 1000 किलोमीटर तक ये नदी उत्तर की तरफ बहती है। उसके बाद में पूर्व की दिशा से मुड़ के अटलांटिक समुद्र में जाके मिलती है। साओ फ्रांसिस के नदी के मुख पर 250 किलोमीटर लंबाई का भाग जल वाहतुक, मतलब वहाँ से हम पानी की जो जल वाहतुक है वो करने की लायक है। तीसरा पार्ट मतलब पेनिसुलर रिवर्स, उसमें से पेनिसुलर रिवर्स में जैसे कि हम कोस्टल रिवर्स में जो किनारी प्रदेशों के पास बहने वाली नदियाँ, उसको हम कोस्टल रिवर्स बोलते हैं। ब्राज़ील के किनारू प्रदेश में बहुत कम लंबाई की नदियाँ हमको दिखाई देती हैं, क्योंकि इस किनारी प्रदेश में मैक्सिमम मात्रा में लोक बस्ती मतलब लोगों की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम होने की वजह से इस नदियों का महत्व है। इनमें परानिबा, इटापेकुरू या ये जो नदियां हैं वो उत्तर की दिशा की तरफ बहते हैं और उत्तर अटलांटिक समुद्र में, महासागर में मिलते हैं।
दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिलने वाली नदियाँ जो हैं उनका जो पानी का ये है मिलाप है वो ब्राज़ील की उच्च भूमि में होता है। पुरागू आकू नदी साल्वाडोर के पास अटलांटिक समुद्र में मिलती है। इस तरह से जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया और ब्राज़ील, इंडिया में हिमालयन में 2 सिंधु नदी और गंगा नदी, और तीसरा जो किनारों की जो दूसरी नदियां हैं भारत में से बहने वाली जो द्वीपकल्पी नदियां और बंगाल की समुद्र में मिलने वाली नदियां। उसी तरह ब्राज़ील में अमेज़न रिवर, पैराग्वे पैराना रिवर्स, साउथ फ्रांसिस्को रिवर और कोस्टल रिवर्स इस तरह से आगे जाके मिलती है। ओके, यहाँ पे ये लेसन ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई शंका हो, यू मे कॉल मी फ्रैंकली। थैंक यू।